हर कंपटीशन की तैयारी में करंट अफेयर्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन कम्युनिटी आपके लिए लाए हैं कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम। यह प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 25 घंटों का यह प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें 6 घंटे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, 5 घंटे छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, 10 घंटों का नेशनल करंट अफेयर्स के साथ 4 घंटों के इंटरनेशनल करंट अफेयर, कुल मिला के 25 घंटे हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। केवल वीडियो ही नहीं, आपको इसके साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। 12 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, इस बात को ध्यान रखना, और 15 जनवरी से यह प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। मात्र 1000 रुपए के नॉमिनल कॉस्ट पर यह प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एक्टिविटी को इस करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। तो दो अपनी तैयारी को धार और जुड़ो कंपटीशन कम्युनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ। Hello aspirants, once again welcome to all of you in Competition Communities FTR 3.0 series. And this video is based on part 9 of Indian history. And in this video, we are going to cover the questions from the topics Mughal Empire and the Maratha Empire. So let's start the first question of this video. Here is the first question of this video. The first question is based on consider the following statements regarding the Battle of Ghagra. बैटल ऑफ घाघरा के बारे में जो स्टेटमेंट्स है वो फर्स्ट है कि इट वाज फॉट बिटवीन द अफगान किंग महमूद लोदी एंड द मुगल एम्परर बाबर. यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन द बाबर वर्सेस अफगान किंग महमूद लोदी. Mahmud Lodi, who was the brother of Ibrahim Lodi and belongs from Lodi dynasty. This war was fought in 1529. So in 1529, Babur fought a vigorous war with Afghan force and with the king of Mahmud Lodi. Afghan king Mahmud Lodi. So remember, this is very correct statement. And because this war is fought on the bank of the river Ghagra in Bihar, that's why this war was called as Battle of Ghagra. After then, the next statement is, it was the last major battle for the conquest of India by the Mughal Empire. Yes, it was the last battle fought by Babur for the conquest of India by the Mughal Empire, because this battle was followed by the three battles named as 1526, 1527 and 1528. 1526, we all know that the first battle of Panipat, Babur versus Ibrahim Lodi. 1527, the battle of Khanwa. The battle of Khanwa, Babur versus Rana Sanga. And 1528, the battle of Chanderi. The battle of Chanderi, Babur versus Medni Rai. So this, and 1529, this battle was Babur versus Mahmud Lodi. So this was the last major battle fought by the Babur for conquest in India. So this is the last two. They are asking the correct statements. So which statements are correct? So here both statements are correct. Hence the answer is C. Okay. Now moving to the next question. Next question says, who was the first to get the title of Khane Khana in the Akbar's court? Now this question belongs to Akbar. Who was the first to get the title of Khane Khana? Bairam Khan, Abdul Rahim, Abul Faisal or Todermal? This all four are belongs from the Noraths of Akbar. So Akbar was only 13-year-old when his father died. When his father died, Akbar was at Kalanor in Punjab. That's why his coronation took place in Kalanor in 1556 by Bairam Khan. 1556 में कलानौर में था. तो कहाँ था अकबर? कलानौर में था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं के डेथ की जो न्यूज है वो अकबर को कहाँ पर मिली? तो कलानौर में मिली. और जब हुमायूं की डेथ हुई, या फिर हम कह सकते हैं कि कोरोनेशन अकबर का कहाँ हुआ, तो वो भी आपका कलानौर में हुआ है. तो बैरम खान was the patronage of Akbar and he became the वकील of the kingdom with the title खाने खाना. So Bairam Khan was the first to get the title of खाने खाना, और also उसको क्या बोला जाता था? तो वकील ए वजीरात भी कहा जाता था. किसको कहा जाता था? तो बैरम खान को कहता था. और अकबर जो है, खान बाबा किसे कहता था? तो खान बाबा भी अकबर बैरम खान को ही कहता था. One of the major achievements of Bairam Khan was defeat of Hemu in 1556 in the battle of Panipat, in the second battle of Panipat. तो ये इसका मेजर अचीवमेंट्स हो जाता है बैरम खान की अगर बारे में बात करें. And at the end, Bairam Khan revolted and defeated. Akbar pardoned Bairam Khan and asked him to get retired. So he sent Bairam Khan to Makkah, Medina. There he was killed by the Afghan in Makkah, Medina. In गुजरात जो है बैरम खान का अंत हुआ था. कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के पटना के आसपास बैरम खान को एक मुबारक खान नाम के अफगान शख्स ने मार दिया था. तो ये बैरम खान की कहानी थी, और बैरम खान ही पहले थे जिन्होंने खाने खाना की उपाधि मिली थी. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वॉर्स इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इन वॉर्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट बैटल ऑफ खानवा। So Battle of Khanwa was fought near the village Khanwa in Bharatpur district of Rajasthan. तो खानवा कहां पर है? खानवा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। एंड दिस बैटल वाज फॉट इन 1527। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो मुगल फोर्स, द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर वर्सेस जो राजपूत फोर्स थी, एंड दिस राजपूत फोर्स वाज लेड बाय राणा सांगा। रिमेंबर, राणा सांगा के साथ यह जो बैटल है लड़ा गया था, बैटल ऑफ खानवा इन 1527। नेक्स्ट, बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट इन 1539 and in this battle Humayun versus Sher Khan, and in this battle Sher Khan defeated Humayun. So this battle Sher Khan versus Humayun, okay, Humayun कब हुई थी ये बैटल? तो ये हुई थी 1539 में। उसके बाद अगली बैटल की बात करेंगे, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज 1540, बैटल ऑफ कन्नौज, और ये बैटल भी सेम है, हुमायूं वर्सेस शेर खान के बीच में बैटल हुई थी। इन दिस बैटल शेर खान फाइनली डिफीटेड हुमायूं, सो द शेर खान बिकेम द मास्टर ऑफ आगरा एंड दिल्ली। सो दिस बैटल वाज फॉट इन 1540। 1539 में चौसा है और 1540 में कौन सा है? तो वो कन्नौज है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं, तो यह जो है 1556 में बैटल था, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर की तरफ से बैरम खान था और शेर शाह सूरी का प्रधानमंत्री था, जो हेमू है जिसको आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। तो अकबर वर्सेस हेमू, जिसमें बुरी तरीके से पराजित हुआ था हेमू, और फाइनली 15, यही जो बैटल है ये आपका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहलाता है। ओके, सो अगर हम सीक्वेंस में अरेंज करें तो आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which of the following pairs is not correctly matched? ये देखना है कि कौन से पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच नहीं। Abolition of जजिया, end of the slavery, end of सती सिस्टम एंड abolition of pilgrim tax। एक बार जजिया को अबॉलिश करना और एक बार पिलग्रिमेज को अबॉलिश करना। तो अकबर के पीरियड की बात करते हैं, 1560 to 62। दिस पीरियड वाज नोन एज पेटीकोट रूल। पेटीकोट पीरियड कहते हैं इसको, पेटीकोट रूल कहते हैं इसको, बिकॉज इन दिस पीरियड, बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ बैरम खान, अकबर वाज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेडीज ऑफ हिज हरम। वो अपने हरम के लेडीज के साथ ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था, इसीलिए इसको हरम दल भी कहा जाता था, हरम दल। एंड दिस लेडीज मोस्टली इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द अकबर। ज्यादा से ज्यादा डिसीजन जो है ये लेडीज ही लेती थी। एंड द मेन लेडी हु यूज्ड टू कंट्रोल द अकबर्स डिसीजन वाज हिज फोस्टर मदर, और उनकी फोस्टर मदर को कहा जाता था महम अंगा। महम अंगा के नाम से उनकी फोस्टर मदर को कहा जाता था। तो पेटीकोट रूल तक अकबर कुछ खास काम नहीं कर पाया था, मतलब 1562 तक। लेकिन उसके बाद जब 1562 में उसका मैरिज हुआ, हरखा बाई या फिर जोधा भाई के साथ मैरिज हुआ, तब उसने अपने रिलीजियस डिसीजंस लेना शुरू किए थे। माइंडसेट जो है अकबर का काफी बदल चुका था। इसीलिए डिसीजंस आप देख रहे हो, जो भी काम देख रहे हो अकबर के, वो उसके शादी के बाद, विवाह के बाद हमको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो बात करते हैं अबॉलिशन, या फिर हम पहले बात करते हैं 1560 से। सबसे पहले 1562 एंड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। क्योंकि जो स्लेव्स है उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत बुरा बिहेवियर किया जाता था, इसीलिए सबसे पहले एंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम को एंड किया था किसने? 1562 में अकबर ने इसको एंड किया था। उसके बाद 1563 में हिंदुओं से पिलग्रिमेज के समय जो टैक्स लिया जाता था, 1563 में उस टैक्स को अबॉलिश्ड किया था। सो दिस टैक्स वाज अबॉलिश्ड ऑन 1563 एंड 1562 slavery system. Okay, now 1564, now this was the very important decision taken by the Akbar, abolition of jizya tax. So jizya tax was abolished by the Akbar to whole India. Actually it was started in 712 AD by Muhammad bin Qasim, but आगे चल के याद रखना औरंगजेब ने वापस से जजिया टैक्स को लगाया था। इसका मतलब जहांगीर के पीरियड में और शाहजहां के पीरियड में जजिया टैक्स नहीं था। फाइनली आगे जाके किसके पीरियड में आया? औरंगजेब। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगला देखते हैं एंड ऑफ सती सिस्टम। तो यहाँ पर 1560 नहीं आएगा, जब इन्होंने अबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स किया था उसी समय सती सिस्टम को भी इन्होंने अबॉलिश किया था, तो 1560 नहीं आएगा। तो ये जो है नॉट करेक्टली मैच दिख रहा है, एंड ऑफ सती सिस्टम 1560, इट इज नॉट करेक्टली मैच। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्लेस कलानौर इज नोन फॉर।
अभी हमने डिस्कस किया कि अकबर was only 13 year old when his father Humayun died. So when his father died, at that time Akbar was in Kalanauр in Punjab. That's why his coronation took place in Kalanauр, Punjab itself in 1556 में coronation हुआ था। तो 1556 में अकबर का कोरोनेशन हुआ था। तो यह जो प्लेस है वो क्यों जाना जाता है, तो बिकॉज एज द एसेशन ऑफ द एम्परर ऑफ अकबर, इसीलिए कलनौर जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अकबर नवरत्न की बात हो रही है। अकबर के पीरियड में जो नवरत्न नहीं थे, नौरत्न थे, हमको मालूम है कौन कौन से नौरत्न थे। तो सबसे पहले अबुल फजल और अबुल फैजी, दोनों भाई हो गए, अबुल फजल अबुल फैजी। उसके बाद बिरबल और तानसेन हो जाएगा। बिरबल तानसेन के बाद हकीम हुमान और मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुमान मुल्ला दो ताजा के बाद होगा मान सिंह और टोडरमल, और मान सिंह और टोडरमल के बाद बैरम खान का ही बेटा, जिसको आप अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जानते हो। तो ये नौरत्न थे अकबर के कोर्ट में। उनमें से बिरबल हो गया, टोडरमल हो गया, मान सिंह हो गया। कौन नहीं था, तो बदायूनी जो है वो अकबर के नौरत्न में नहीं था। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखें। व्हेन वाज द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत फॉट। पानीपत का जो थर्ड वॉर है वो किनके बीच हुआ था, तो इट वाज फॉट बिटवीन मराठा किंगडम वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और इसके साथ शुजाउद्दौला के बाद शाह आलम सेकंड, इन लोगों ने भी इस बैटल में अहमद शाह अब्दाली की तरफ से ये लोग लड़े थे। कहां से लड़े थे, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड जो है ये अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़े थे। तो दिस वाज द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत एंड इट वाज फॉट ऑन 14th of Jan 1761। तो ये भी पूछा जा सकता है कब लड़ा गया था, 14th of Jan 1761। एक बहुत बड़ा बैटल था जिसमें कहा जाता है कि मराठा किंगडम में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसमें से किसी ने बलिदान ना दिया हो। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर। जहांगीर के खिलाफ किसने रिवोल्ट किया था। सो जहांगीर के सबसे पहले तो दो बेटे, जहांगीर के दो बेटे कौन कौन हुए। पहला जो रेबेलियन हुआ था तो उसमें तो आप समझो खुसरो, और उसके बाद जो इसका दूसरा बेटा है वो है खुर्रम। तो खुसरो और हो गए खुर्रम। खुसरो वॉज अ सन ऑफ मान बाई, जबकि जो खुर्रम है वो किसका सन था, तो वो जगत गोसाई का बेटा था। कौन आपका, तो ये खुर्रम जो है जगत गोसाई का बेटा था। इसमें से खुसरो का जो रेबेलियन हुआ था वो 1606, जबकि खुर्रम का रेबेलियन याद रखना है 1623 के आसपास हुआ था। किसका, खुर्रम का रेबेलियन। तो बात करते हैं खुसरो के रिवोल्ट की। खुसरो का जो रिवोल्ट है तो अकबर का कमांडर इन चीफ और द मैटरनल अंकल ऑफ खुसरो मान सिंह and Mirza Aziz Koka wanted Khusro to become the emperor in place of Jahangir, and that's why revolt started. And fifth Guru of Sikh Arjun Dev was also provided support to this rebellion, and Arjun Dev was put to death after the revolt. So remember this, Arjun Dev fifth Guru of Sikh नाम है अर्जुन देव, ठीक है। तो अर्जुन देव was put to death by Jahangir. So remember this was the revolt in 1606 by Khusro. And after then 1623 खुर्रम का रिवोल्ट होगा, प्रिंस खुर्रम ने भी रिवोल्ट किया था। एंड रिमेंबर महाबल खां, इसका भी रिवोल्ट जो है 1626 में इसका रेबेलियन भी हुआ था। तो तीनों रेबेलियन दिखे, खुर्रम का, खुसरो का और किसका, महाबत खां, तीनों रेबेलियन हमको दिख रहे हैं जहांगीर के कोर्ट में। सो दिस इज आंसर इज 2, 3 and 4। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। कौन सा मैच करता है, मुगल एम्पियर और उनके टॉम दिए हुए, मुगल एम्पियर और उनके टॉम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले टॉम की हमको बात करनी है, बाबर। तो बाबर की बात करें तो बाबर डाइड इन 1530 इन आगरा एंड ही वाज इनिशियली ब्यूरिड इन आरामबाग आगरा। लेटर द टॉम ऑफ बाबर वाज बिल्ट इन काबुल। तो लेटर इट मींस द फर्स्ट मुगल एम्पियर हु ब्यूरिड 2 times। First he was buried initially he was buried in Agra and then after he was in the tomb was built in Kabul। So कहां पर है बाबर का कोर्ट, तो बोलोगे काबुल में है बाबर का कोर्ट, भारत में नहीं। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर का टॉम कहां पर है, अकबर का जो टॉम है वो सिकंदरा में है। सिकंदरा मतलब अकबर का टॉम जो है वो आगरा में है। जो प्लेस है टॉम की वो डिसाइड जो अकबर करता है, लेकिन इसको बाद में कंप्लीट करवाने का काम जो है जहांगीर करता है। सो अकबर
टॉम्ब वाज बिल्ट बाय जहांगीर। ये दिख रहा है आपको, ये अकबर का टॉम्ब है। इसमें आपको ये चीज और बता दूं कि इसमें कोई भी गुंबद नहीं, यहाँ पर कोई भी गुंबद नहीं है, ठीक है। तो अकबर का कोट है। तो अगर देखें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं, तो अकबर का जो है फतेहपुर सिकरी, तो ये मैच तो नहीं कर रहा है क्योंकि सिकंदरा में है, और सिकंदरा कहाँ है, आगरा में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो जहांगीर को लेकर है। जहांगीर का कहां पर है, तो जहांगीर का लाहौर में टॉम्ब है। चलिए बिल्कुल सही मैच कर रहा है, जहांगीर का जो टॉम्ब है वो लाहौर में है, ये भी भारत में नहीं है। जैसे कि बाबर का नहीं है, वैसे जहांगीर का भी नहीं, और बहादुर शाह जफर का दिल्ली में भी नहीं है। बहादुर शाह जफर वाज कैप्चर्ड इन 1857, रिवोल्ट की बात हो रही है, रंगून में जेल भेज दिया गया था, और रंगून म्यांमार में इसका टॉम्ब आपको दिखाई देगा, दिल्ली में नहीं दिखाई देगा। सो कौन कौन से करेक्ट मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड जो है करेक्ट मैच कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट मैचेस। चलो बढ़ते हैं आगे, ये दिखा दें, ये जो आपको टॉम्ब दिख रहा है ये जहांगीर का टॉम्ब है। चलो उसके बाद है कौन कौन से करेक्ट मैच है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जहांगीर मैरिज विद नूरजहां, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांधार बाय सफविस एंड डेथ ऑफ शिवाजी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैटल fought by Akbar was Battle of Haldighati in 1576. Battle of Haldighati in 1576, and that battle was fought by Akbar versus Maharana Pratap. Maharana Pratap, the Mewar, ये मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। Although the Akbar won this battle, but he failed completely to conquer the Mewar. And remember, Maharana Pratap was the first skilled soldier of the guerrilla war strategy. सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 अकबर का एक बहुत फेमस बैटल था। जहांगीर मैरिज विद नूरजहां, नूरजहां का एक्चुअल जो नाम था वो था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा इसका एक्चुअल नाम था, ये हम रिवाइज कर लेते हैं। और नूरजहां के साथ इसका जो मैरिज हुआ था वो 1611 में मैरिज हुआ था, किसके साथ, जहांगीर के साथ। अगला जो है वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कंधार बाय सफविस, ये जो है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना 1622। और डेथ ऑफ शिवाजी, शिवाजी की डेथ कब हुई थी, तो 1680 में शिवाजी की डेथ हुई थी। चलो इसके बाद हमको जो आंसर मिलता है वो है आंसर इज 2143, ये आंसर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का डेट, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का डेट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ था, तो 1526, 21 अप्रैल 1526 का इसका डेट निकल कर आता है। किसके किसके बीच हुआ था, याद रखना, इट वाज बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, पानीपत का फर्स्ट बैटल। राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था, क्योंकि राणा सांगा जो है वो लाखों की सेना लेकर आने वाले थे डिफीट करने के लिए इब्राहिम लोधी को, और कुछ बहुत कम सेना के साथ बाबर आया था, लेकिन फाइनली धोखा किया था राणा सांगा ने, और वो लड़ने के लिए मैदान पर नहीं पहुंचा, पानीपत के मैदान। अकबर वैसे बहुत ज्यादा सेना लेकर तो नहीं आया था, लेकिन दिमाग इसके पास काफी अच्छा था, और पानीपत के फर्स्ट बैटल में उसने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है 5 नवंबर 1556 को हुआ, और उसके बाद ये अभी मैंने आपको बताया कि इसके बीच में हुआ था, तो अकबर वर्सेस हेमू, जिसमें जीत किसकी हुई थी, बैरम खां यानी अकबर की यहां पर जीत हुई। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अभी हमने डिस्कस किया है, 14 जनवरी 1716 मराठा किंगडम वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, ठीक है ना। ये भी बहुत विध्वंसक युद्ध था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है। तो ये इस तरीके से इसकी डेट मैच होती है, तो डेट के साथ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ हिज रेन, और ये लोग है कौन, तो ये लोग हैं पेशवा। मराठा एम्पायर में जो पेशवा होते थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको जमाना है। सबसे पहले इनके रेन का जो टाइम पीरियड है वो अगर डिस्कस कर लें, तो टाइम पीरियड पहले था 1713 टू 1720, नेक्स्ट 1720 टू 1740, और उसके बाद 1714 से लेकर 1761, 13 से लेकर 20 इस समय जो पीरियड था। तो फर्स्ट पेशवा का नाम याद रखना, इनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो है वो पहले पेशवा होंगे, नाम है बालाजी विश्वनाथ, और ये जो है सेकंड फाउंडर माने जाते हैं मराठा एम्पायर, सेकंड फाउंडर। उसके बाद 1720 से 1740 जो है, यहां पर बहुत ही फेमस पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट लड़ाकू पेशवा के नाम से फेमस थे, सेकंड पेशवा बाजीराव फर्स्ट। और उसके बाद 1740 1761 बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव थर्ड पेशवा जो है वो होंगे बालाजी बाजीराव। और इनके रेन में एक फेमस बैटल हुआ था 1761 में ही हुआ था, जो कि था आपका
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। किस समय थे पेशवा? तो बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा। चलो अगर हम जमाएं, और उसके बाद जो है सब कुछ खत्म होने के बाद अगले जो थे वो थे माधवराव, तो ये लिखा हुआ है माधवराव। अब जमाते हैं, बालाजी विश्वनाथ जो है वो पहले है, फिर उसके बाद बाजीराव फर्स्ट जो है वो सेकंड है, बालाजी बाजीराव जो है थर्ड है, और उसके बाद अगले हो जाएंगे माधवराव। तो हमको दिख रहा है 3, 1, 2 एंड 4। कहां है 3, 1, 2, 4? ये दिख रहा है 3, 1, 2, 4। सो आंसर इज सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहां पर मराठों के टैक्स सिस्टम को दिखा गया है, ठीक है ना, मराठों का टैक्स सिस्टम है और हमको मिलाना है। चलो बात करते हैं चौथ की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम से ही समझ में आ गया, चौथ मतलब 1/4 ऑफ द टैक्स। तो 1/4 पार्ट को डायरेक्टली हम किसके साथ जोड़ सकते हैं? चौथ के साथ जोड़ सकते हैं। ऑफ द लैंड रेवेन्यू गिवन टू द मराठास बाय अदर किंग्स, एंड दैट लैंड रेवेन्यू वाज गिवन टू मराठा बाय अदर किंग्स। अदर किंग्स का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई किंग है और मान लो ये क्या है, ये मराठा से। तो अगर मराठा ने यहां पर अटैक किया और इनको जीत लिया, तो किसी कारण से शामिल नहीं कर पा रहे, और अगर शामिल नहीं कर पा रहे हैं अपने एम्पायर में, तो यहां से प्रोटेक्शन के बदले, मतलब फॉरेन अटैक से प्रोटेक्ट करने के बदले में 1/4 जो है वो टैक्स लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो लिया जाता था ये नॉन मराठा रीजन से लिया जाता था। चौथ जो है वो लिया जाता था नॉन मराठा रीजन से। उसके बाद अगला जो है वो सरदेशमुखी। मतलब अगर आपने सरदेशमुखी का मतलब ये होता था, यहां से समझो, बिकॉज शिवाजी एज्यूम हिमसेल्फ एज हेड ऑफ देशमुख ऑफ महाराष्ट्र, मींस सरदेशमुख ऐसा शिवाजी एज्यूम करते थे, और इसी नाते वो समझते थे कि जहां जहां पर भी जो किंग रूल कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे उसमें हेरिडिटेरी राइट्स वहां पर हैं, और यही कारण है कि वो सरदेशमुखी टैक्स लेते थे। लेकिन कितना लेते थे? तो वो 10% लेते थे, यहां पर कम लेते थे, क्योंकि ये रीजन्स वो भी होते थे जो मराठा रीजन्स भी हो सकते थे। तो दोनों से लिया जाता था सरदेशमुखी जो है, मराठा प्लस नॉन मराठा दोनों रीजन से लिया जाता था सरदेशमुखी, ठीक है। तो अगर आप एम्पायर को नहीं भी मिला पाए हो, मतलब एम्पायर को मिला लेते हो, तो वहां से सरदेशमुखी भी ले सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता था कि कौन सा रीजन चौथ के रेंज में आएगा और कौन सा रीजन जो है वो सरदेशमुखी के रेंज में आएगा। तो सरदेशमुखी को आपने किसके साथ जोड़ा? वो 10% के साथ जोड़ा। उसके बाद मोक्ष, ठीक है। मोक्ष जो है ये जो है आर्मी से रिलेटेड है। रेवेन्यू ऑफ लैंड गिवन टू मिलिट्री ऑफिसर्स, सैलरी की जगह दिया जाने वाला लैंड जो था वो क्या था? आपका मोक्ष था। उसके बाद कुर्जापत्ती की बात करते हैं। ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के समय, इकोनॉमिक क्राइसिस के समय, एक साल की इनकम का, 1 ईयर इनकम का, उसका जो है टोटल टैक्स लिया जाता था, उसके ऊपर जो सरचार्ज लिया जाता था उसको हम कहते थे कुर्जापत्ती, ठीक है। तो 4 का जो कनेक्शन है वो किसके साथ हो गया? 1 के साथ हो गया। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 2, 3, 4 एंड 1। 2, 3, 4, 1 आंसर है, मतलब ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ हमने कुछ मुगल से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और उसके बाद हमने मराठा किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तैयारी करते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगले क्लास में। टेक केयर एंड जय हिंद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।